Okay. Now Visual Basic Express 2010. This is one of the programming language. Okay. One of the programming language. Underline the important features or write down in your rough copies. This is one of the programming language in which you will create the programs, in which you will create the applications. They are user-friendly applications or user-friendly interfaces. This is a programming language in which you can develop the applications having user-friendly interface. User-friendly interface means in which user can interact with the various kind of text boxes, check boxes, buttons, menus, options are there. All of you are using the various applications. आप MS Word use करते हो, Excel use करते हो, PowerPoint use करते हो, मोबाइल में अलग-अलग तरह के apps use करते हो. Apps में आपको क्या होता है? आपको easily समझ आ जाता है कि yes, this is the button given. यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेन्यू ओपन होगा. इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये होगा. स्कैन पे क्लिक करेंगे तो फोटो स्कैन होएगी. जूम पे क्लिक करेंगे तो फोटो जूम होएगी. दैट मीन्स यूजर फ्रेंडली है कि आपको ऑप्शन का नेम देख के या बटन का नेम देख के या उसका कलरफुल इंटरफेस देख के क्लियर हो जाता है कि यस इस एप्लीकेशन में वी आर गोइंग टू डू दिस या दिस बटन विल हैव दिस काइंड ऑफ मीनिंग, दिस काइंड ऑफ पर्पस. So this kind of user-friendly applications, user-friendly interface applications you can create by using Visual Basic. Okay. Now this is a language which is developed by Microsoft. First version in 1991. Developed by Microsoft in 1991. There are many versions available, VB5, VB6, जो old version से, VB.NET, ठीक है, VB 2010, Visual Studio Proper भी है, Visual Basic 2010 Express Edition is the different, then Visual Basic 2017, 16, all these are the various versions. I think book में 17 दिया हुआ है, ठीक है, but I had not searched in internet. Maybe उसके बाद कोई आया तो I'm not aware about that. Book में आपके पास 2017 दिया हुआ है. Now Visual Basic 2010 Express Edition. This is one of the edition which is a freeware. Okay, it is a freeware. That means you can freely download it out without any cost from internet. Proper जो आपका studio है Visual Basic 2010 Studio, that is a paid version. ठीक है, but Express Edition is a freeware only for the beginners to learn programming. That is why I told you you can download it from internet free of cost. And many of you are having system at your home. First thing you will do now is download it from internet and have it in your systems to do the practice. Window based, you can have the versions of window based or Mac based. तो आपको internet website पे आपको मिल जाएंगे version. You can download it from internet free of cost. This edition only, which is freeware available by the Microsoft only for the beginners to learn programming. Okay, no doubt there will be difference in the paid version and the free version, but for beginners जितनी आपको programming चाहिए, there will be no difference. Visual Studio will have the advanced features, advanced programming जो आपके features होंगे, features will be there, but you may not need them as a beginner. So beginners के लिए that version is free. आप उसको download करिए, उसमें programs और applications create कर सकते हैं. ठीक है? Now what are the various things here that you can have in the user-friendly interface? आप कोई भी internet में form देखते हो, form में क्या होता है? Usually labels होते हैं, first name, last name, text लिखा होता है, उसके आगे आपको similarly text boxes मिलते हैं. आप text boxes में values enter करते हैं. So user-friendly interface can include labels. You can create labels in this VB. You can have the text boxes जैसे हमने assess में create करे थे. You can have the buttons like submit button, OK button, cancel button, back button, forward button.
डिपेंड कि आप क्या क्रिएट कर रहे हो, क्या एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो. यू कैन क्रिएट द बटन्स, यू कैन हैव द लिस्ट बॉक्सेस. लिस्ट बॉक्सेस आपके पास कई बार फॉर्म्स में कंट्री की ऑप्शन होती है, रीजन की ऑप्शन होती है. आप डाउन एरो पे क्लिक करते हो, एक लिस्ट अपीयर होती है, आप उसमें से लिस्ट ऑप्शन चूज करते हो, जो कंट्री है वो लिस्ट दोबारा कॉन्ट्रैक्ट स्मॉल हो जाती है. तो दैट इज लिस्ट बॉक्स. लिस्ट बॉक्सेस, combo boxes, that is called combo box. Combo box, it is a combination of list box and text box. Combo box, it is a combination of list box and text box. Size it will have only of the text box, but when you click on it, it will display a list. You select any one option, it again menu close हो जाता है, only text box में वो value fill हो जाती है जो आपने select करी है. ठीक है. Then list box, it will give you a list of various items in which you can select the various options. It may allow you to select only one option. It may allow you to select multiple options. You can have the various check boxes. Check boxes means आपने कई बार देखा होगा आपके पास लैंग्वेज की ऑप्शंस होती हैं फॉर्म में. जब आप कोई फॉर्म फिल करते हो, मे बी आपका कोई नेटफ्लिक्स का या किसी चीज का आप लैंग्वेज ऑप्शंस आती है, या अगर कोई बुक्स का एप्लीकेशन होता है तो आपके वो जनरल पूछते हैं कि आपको इंटरेस्ट किस चीज में है. अगर पिंटरेस्ट में भी लॉग इन करते हैं फर्स्ट टाइम, दे आस्क यू द इंटरेस्ट, राइट? तो व्हेन देयर यू कैन सेलेक्ट द मल्टीपल ऑप्शंस. तो चेक बॉक्सेस अलाउज यू टू सेलेक्ट द मल्टीपल ऑप्शंस. कि आपके पास अगर 20 ऑप्शन है तो आप उसमें से जितनी ऑप्शन चाहो सेलेक्ट कर सकते हो, टिक बॉक्स कर सकते हो. Check boxes allows you to select multiple options. Then there are radio buttons. Radio buttons means जिसमें आपके पास small circle होता है जिसमें dot आता है select करने पे. Where you can select one of the many options. जब आपको एक ही option select करनी है out of many options, then we use the radio buttons. So these are the various kinds of controls which you can create, which you can use to create the applications in VP. And all these controls are available in the toolbox of VP. आप ये सारे controls use करके अपना एक form, अपना एक application create कर सकते हैं. You can have the dialog boxes, you can have the picture boxes, you can change the colors, you can format them. ठीक है. You can have multiple forms in one application. Each form will appear depending on your ऑप्शन सेलेक्टेड कि किस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, क्या ऑप्शन चाहिए. आपके पास जैसे सपोज एक प्रॉपर एप्लीकेशन है, मुझे एडमिशन के लिए एडमिट स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाना है, एडमिशन फॉर्म चाहिए. एडमिशन फॉर्म क्रिएट कर लिया बाय यूजिंग द वेरियस कंट्रोल्स. यू कैन हैव द एडिट करने के लिए अलग से फॉर्म चाहिए, एडिट करना है या नहीं हुआ. ठीक है. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि व्हाट वेरियस थिंग्स यू कैन डू इन VP. ठीक है. यू कैन यूज ऑल दीज कंट्रोल्स. मेनी कंट्रोल्स आर देयर. ये तो मैंने सिर्फ आपको 5-6 एग्जांपल्स दिए हैं. देयर आर मेनी टाइप ऑफ कंट्रोल्स अवेलेबल which you can use to create your own applications. Like suppose करो आपके पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर देखते हो, विंडोज का भी कैलकुलेटर आप कई बार ओपन कर लेते हैं. आप वैसा एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो VP में, अपना खुद का कैलकुलेटर क्रिएट कर सकते हो. रेड लाइट्स रेड ग्रीन ब्लू होनी चाहिए, आप ऐसे आपके छोटे छोटे गेम्स क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. नाउ इन दिस इज अ सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर. मैंने आपको बता दिया वेरियस कंट्रोल्स यू कैन यूज. देन यू कैन हैव इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग. दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक. व्हाट इज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग? देखो आपको दिए हुए हैं बेटा, बुक में दिया हुआ है. Visual Basic creates event-driven applications which encourage high user interface through icons, menus, pointers, buttons, dialog boxes. ठीक है. You can have the menu bars. आप अपने खुद के menu bars create कर सकते हो. Menus पे क्लिक किया, options आ रही है, आप अपने menus create कर सकते हो, अपनी application बनानी है तो. ठीक है. You can have the various icons, various buttons. They will act as an icon. आपके पास जितने ऊपर टूल बार में बटन होते हैं, आइकन्स नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर पिक्चर नजर आ रही है, नेम नहीं भी लिखा हुआ, आपको भी ले सकते हो, वैसे बटन्स बना सकते हो. किस बटन पे क्लिक करने पे क्या होगा वो प्रोग्राम.
वो इंस्ट्रक्शंस होंगी जो उस प्रोग्राम के बैकएंड पे लिखा होगा, वो आपने लिखना है। ठीक है, तो वीबी में एप्लीकेशन क्रिएट करने के कितने स्टेप्स हो गए? 1, ऐड ऑल द कंट्रोल्स ऑन फॉर्म। क्या क्या चाहिए मुझे फॉर्म पे? फॉर्मेट देम, उसकी प्रॉपर्टीज सेट करो। देन डू द प्रोग्राम एट द बैक एंड, कि किस प्रोग्राम पे किस बटन पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, पॉइंटर का कौन सी की प्रेस करने पे क्या होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड इवेंट्स। इवेंट्स मींस क्लिक। आपने बोल्ड बटन पे क्लिक किया, आपका टेक्स्ट बोल्ड हो गया, ठीक है, दैट मींस इटैलिक और अंडरलाइन या फॉन्ट साइज या फॉन्ट कलर, उसकी कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं एग्जीक्यूट हुई। कब हुआ बोल्ड? भी कब हुआ? जब आपने बोल्ड बटन पे क्लिक किया। दैट इज योर इवेंट, क्लिक इवेंट, कि मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये होगा। दैट मींस इफ दैट इवेंट अकर्स only then instructions of that button will get executed. ठीक है, मैंने अगर अपना अंडरलाइन पे क्लिक किया तो अंडरलाइन बटन की इंस्ट्रक्शंस कब एग्जीक्यूट हुई? जब वो इवेंट अकर हुई। कौन सी इवेंट? क्लिक इवेंट ऑन अंडरलाइन बटन। एग्जैक्टली उस बटन पे क्लिक होगा तो एग्जीक्यूट होगा, ये नहीं कि कहीं भी क्लिक कर दोगे तो हो जाएगी। दैट इज इवेंट। आई प्रेस कंट्रोल एन फ्रॉम द कीबोर्ड, न्यू एप्लीकेशन ओपन हुआ, की प्रेस इवेंट है। When this event occurs, only then new document is opened. ठीक है, मैंने कंट्रोल आई पे क्लिक किया, शॉर्टकट की प्रेस इवेंट अकर हुई। When particular event occurs, only then the instructions related to that event are executed. Usually क्या होता है, आपने बेसिक में प्रोग्राम बनाया, all the instructions are executed in sequence, one by one. बेसिक में हमने प्रोग्राम्स किए थे, लोगों में जब हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस FT 100 PK 100 लिखते हैं, तो जैसे जैसे लिखते हैं एग्जीक्यूट होता है, राइट? वहां पे कोई इवेंट नहीं है। वीबी में क्या हो रहा है? ऑल इंस्ट्रक्शंस आर नॉट एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस नहीं है इंस्ट्रक्शंस का। ईच कंट्रोल विल हैव अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस and those instructions will be executed only when the event related to that button or that control will occur. चाहे वो बटन है, चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स है, चाहे वो आपका लिस्ट बॉक्स है, चाहे कॉम्बो बॉक्स है, हर कंट्रोल के ऊपर आपकी इवेंट हो सकती है। whether it is key press, whether it is double click, whether it is right click, whether it is single click. ठीक है, वेरियस काइंड्स ऑफ इवेंट्स यू विल सी अ लिस्ट ऑफ इवेंट्स, कि मेरा बोल्ड जो होना है सिंगल क्लिक पे होना है कि डबल क्लिक पे होना है। अब सिंगल क्लिक अपनी कोडिंग करिए डबल क्लिक पे, तो अगर आप जितनी मर्जी बार सिंगल क्लिक करते जाओ वो इवेंट अक्कर नहीं हुई, वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो विजुअल बेसिक इज एन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कि दिस इज योर इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग अलाउज यू टू डू इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। ठीक है, आप कंट्रोल्स ऐड करोगे, हर कंट्रोल के बैक एंड पे प्रोग्रामिंग होगी, हर कंट्रोल की बैक एंड पे अलग से इंस्ट्रक्शंस होंगी, हर कंट्रोल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी। प्रॉपर्टीज मींस एप्पल है, एप्पल की क्या प्रॉपर्टी है? ये सर्कल में राउंड है, इसका कलर रेड है, इट इज हैविंग सीड्स, ठीक है, इट इज हैविंग दिस काइंड ऑफ टेस्ट, स्वीट और सॉर। ठीक है, तो सिमिलरली बटन है, बटन की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? व्हाट इज इट्स फोरग्राउंड कलर, दैट मींस जो इसके ऊपर टेक्स्ट नजर आ रहा है उसका क्या कलर होगा। व्हाट इज इट्स बैकग्राउंड कलर, व्हाट इज इट्स हाइट, व्हाट इज इट्स विड्थ, whether it is having shadow, what is its name? Apple is a name, so what is the name of that button? Whether it is enable or disable. आपने कई बार देखा होगा डायलॉग बॉक्स में कुछ बटन्स डिसेबल होते हैं, कोई पर्टिकुलर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो वो इनेबल हो जाते हैं। वो प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि कब वो बटन इनेबल होगा, वेदर बिगिनिंग में इनेबल है कि हाँ, वेदर इनेबल है कि डिसेबल है, हाइड है कि शो है, कंट्रोल व्हेन पर्टिकुलर इवेंट कंट्रोल जो आपका है, चाहे टेक्स्ट बॉक्स है, वेदर इट इज विजिबल और हाइड। तो ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज फॉर एवरी कंट्रोल। अब जितने कंट्रोल्स फॉर्म पे क्रिएट करोगे, हर कंट्रोल की अलग अलग प्रॉपर्टी होगी।
ठीक है, few common properties you will use: name, caption. Caption means what value will be displayed on it. ठीक है, size, height and width. Size नहीं होता, height and width अलग अलग होती है. ठीक है, foreground color, background color. These are some common properties for normally all the controls. ठीक है, name will be there for everyone because we need the name of every control for doing the programming. कोड लिखना है, इंस्ट्रक्शन लिखनी है, तो किस कंट्रोल में क्या हो रहा है, तो उस कोड का पहले कंट्रोल का नेम देंगे तो बताएंगे ना कि इस कंट्रोल को बोल्ड करना है कि नहीं करना, इस कंट्रोल की वैल्यू को हमने ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो कंट्रोल का नेम हमें हर अलग अलग चाहिए. जैसे मैंने दो टेक्स्ट बॉक्सेस अगर बनाए हैं तो दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस का अलग अलग नेम होगा. जब हम वैल्यूज ऐड करेंगे उन टेक्स्ट बॉक्सेस की तो वी विल यूज द वैल्यूज ऑफ द नेम ऑफ दैट टेक्स्ट बॉक्स कि यस इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू प्लस दिस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू. तो नेम विल बी यूज्ड फॉर एवरी कंट्रोल. क्लियर? एनी डाउट टिल नाउ? एनी डाउट टिल नाउ? Online students, Taranya, Ashpreet, Diya, switch on your cameras. Anjani. Okay, underline in books. Visual Basic 2010 Express is a part of Visual Studio 2010 Express. It is a freeware. Okay, best suited for the beginners. Now, event-driven programming. A user performs actions such as pressing a key, clicking a mouse, selecting a checkbox or list box item. Such actions are known as events. जैसे list box में मैंने किसी item को select कर लिया. Many items are there. मैंने एक item select करी. Select करने पे क्या हुआ? वो select करना is an event. Whether some action should be performed in response to that event, that will be decided by the designer, programmer. ठीक है, if somebody has given instructions, programmer has given instructions कि yes अगर ये option select होगी तो ये होना चाहिए, तो that is up to program. Check boxes में various check boxes value select करते हैं. What should be done? What should happen when that event occurs? Selection of check box, so that is decided by program. ठीक है, event means when a user performs some action. Underline. When user performs some action, whether it is clicking, double clicking, right click, key press, or selecting an item, all these are the various examples of events. Okay, you can be asked, give any 4 examples of events. तो कौन सी examples हो गई events की? Single click, double click, right click, key press, selecting any item on your list box, selecting any checkbox. So all these are the various events. When event occur, action जो आपका उसका है perform होना है, at the end ये हुआ है तो ये होना चाहिए, तो वो instructions are given by the program. ठीक है, in event-driven program the statements are not executed in sequence in which they are written. They only get executed when the corresponding event occurs. Now, various modes of VB programs. There are various modes. 3 modes, like in basic, we are having the program mode and output mode. Program mode in which we write the program, output window in which we will see the output of that program. Similarly, we are having design mode and we are having run mode and one more is there, break mode. Okay, design mode, as the name suggests, in which we will design the program, we will design the application. We will add controls to the form, set their properties, do the write instructions, write the programs. Okay, that is your design mode. Run mode, when we execute that program, application को execute कर रहे हैं, that is your run mode. आप various applications आप use करते हो, कैम स्कैनर यूज कर लिया, डॉक स्कैनर यूज कर लिया, कैनवा यूज कर लिया, या मोबाइल में आपकी कोई गेम एप्लीकेशन है, दैट इज इन रन मोड. यूजर एंड यूजर सिर्फ उसको यूज कर रहा है, उसको नहीं पता कि इसके पीछे क्या प्रोग्राम लिखा है. दैट प्रोग्राम इज रिटन बाय प्रोग्रामर इन डिजाइन मोड. रन मोड, द mode in which user interact with the application.
राइट, आपने आइकन पे क्लिक किया, प्रोग्राम ओपन हुआ, दैट इज इन रन मोड, प्रोग्राम रन हो रहा है, आप उसकी कोडिंग नहीं देख रहे हो, उसमें चेंजेस के इंटरफेस में, उसके कलर्स में चेंजेस नहीं कर रहे हो, उसके बटन्स की प्लेसमेंट में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो, राइट, आप सिर्फ उसको यूज कर रहे हो, दैट इज रन मोड. द एंड यूजर विल यूज द प्रोग्राम इन रन मोड. ठीक है, वी ट्राई दैट. ठीक है, हमने प्रोग्राम क्रिएट किया, हम उसको रन करके देख रहे हैं कि ये यूजर को कैसा नजर आएगा, दैट इज रन. जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यूजर्स में, आप इसको अवेलेबल करवाओगे यूजर्स को, हाउ इट विल लुक, दैट इज रन. रन करके एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं. ब्रेक मोड, इफ देयर इज एनी एरर or the program is not giving the desired result, it will get halt, pause. उसमें pause आ जाएगा, halt हो जाएगा, प्रोग्राम वहीं पे, एरर हाईलाइट होगी, अगर तो स्मॉल एरर है प्रॉपर आप उसको वहीं पे करेक्शन करके कंटिन्यू कर सकते हो, प्रोग्राम वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा रन मोड में. दैट इज योर ब्रेक मोड. हाँ, आप उसको स्टॉप करके, ब्रेक मोड आ गया, ठीक है, प्रोग्राम हॉल्ट हो गया, आप उसको स्टॉप करके वापस डिजाइन मोड में आके करेक्शंस करना चाहते हो, दैट्स अप टू यू. बट इन हॉल्ट मोड यू कैन डू द माइनर चेंजेस, आप उस एरर को स्टेटमेंट में चेंजेस करके उसको कंटिन्यू कर सकते. So design mode in which you will create the application or programs, run mode in which the end user will run the program, see the execution, see the output, break mode, if there is any error, you will get program will get halt or pause, make corrections and you can continue from that. Again run mode में वापस आ सकते हो, stop button पे click करके वापस design mode में आ सकते हो. Yes, clear? हाँ जी, any doubt बेटा? Any doubt? ब्रेक मोड में हमने कुछ नहीं करना, अगर कोई एरर अगर होती है तो प्रोग्राम ब्रेक हो जाता है, फॉल्ट हो जाता है, पॉज हो जाता है, उसका रन मोड जो है वो वहीं पे रुक जाता है और आपको एरर हाईलाइट करता है. अगर हम वहीं पे भी एरर को करेक्ट कर सकते हैं, अगर तो माइनर चेंजेस है, आप उसमें एरर को करेक्ट करो और उसको कंटिन्यू पे क्लिक करो, रन पे दोबारा प्ले पे क्लिक करो, वो कंटिन्यू हो जाएगा वहीं से. ठीक है, अगर ज्यादा है या आपको लग रहा है कि मुझे और चेंजेस करनी है, मुझे डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप उसको स्टॉप करके वापस डिजाइन मोड में आओ, चेंजेस करो एंड दोबारा रन करो. ठीक है.